पेट जाके ना फिर तेजाब का इफैक्ट हो जाता ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੈਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਚਾਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਹ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਕਲੋਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਬੂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੀ ਖੂਨ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੀ ਖੂਨ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਸਿਰ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੱਟ-ਕੁੱਟ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਾਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜੇ ਖੂਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਟਾਈਮਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੰਗਸ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੁੜੇ ਖਾਊਂ ਖਾਊਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਆਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਖਾਊਂ ਖਾਊਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਫ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਫ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ। ਚਾਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2-3-4 ਨਾਲ। ਪਰ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਚਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੌਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਡਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੌਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਕੱਪ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਕੌਫੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਲੰਗਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਲ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ 200, 300 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹਨੇ 200-300 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, 500 ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਈ, PhD ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਊਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਊਗੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ PGI ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਚਾਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਕੱਲ ਚਾਹ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਦੀਨਾ ਹੈਗਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਦੀਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਲਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਦੀਨਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ਮੈਰੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਤਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿਲੜਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿਲੜਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਸੁੱਕਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਲ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਪੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਤੇ ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਇਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੌਨਿਕ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ।
ਥ੍ਰੈਡ ਵਰਮ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੀਓ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ। ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਾਵੇ? हाँ जी, नींबू नाल जो चाह पीती है तो वेट रिड्यूस होता है। बेसिकली चाह बहुत ही नींबू वाली नहीं पीनी चाहिए, लेमन ग्रास की पीनी चाहिए चाह, वो वेट बहुत रिड्यूस कर दी है, वो रिड्यूस भी कर दी है और ब्रेन टॉनिक भी है। जब नींबू ते गर्म पानी पींदे हो रूटीन दे विच थोड़ा 1 महीने विच 2 किलो वेट घट जाता है। सर जो लेमन ग्रास की टी हम बनाते हैं तो उसमें मिल्क यूज करें या केवल उसको बॉईल करें? नहीं, उसको मिल्क यूज कर सकते हैं बाद में। बॉईल करने के बाद जब आप कप में डालते हैं तो उबला हुआ मिल्क उसमें यूज कर सकते हैं। लेमन ग्रास की टी में कभी मिल्क बॉईल नहीं करना, क्योंकि फट जाता है सर। नहीं, उसमें फर्मेंटेशन होती है, उसमें एक एसिड होता है जो मिल्क को फाड़ देता है। लेमन इटसेल्फ नहीं, लेमन ग्रास वो उसमें वो फाड़ देता है। क्योंकि मैंने ये एक बार करके देखा था, तो जैसे ही मैंने उसमें दूध डाला तो वो फट गया। हाँ, लेमन ग्रास में कभी भी जो दूध है वो बॉईल करने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। लेमन ग्रास को अलग बॉईल किया जाता है, और अगर दूध आपने डालना है तो लेमन ग्रास में उबले पानी में अलग दूध डाल सकते हैं। वैसे कोशिश करें बिना दूध के पीने की। उसमें शुगर तो ऐड कर सकते हैं सर? लेमन ग्रास शुगर आप किसी भी चीज में ऐड कर सकते हैं, मगर शुगर से एक तो वेट बढ़ेगा, एक हल्का सा एसिडिटी होने के चांस रहेंगे, और दूसरा भूख कम लगेगी जब चाय के साथ शुगर ऐड करेंगे। अगर शुगर को आप सीधा खाएंगे तो खा सकते हैं आप चाय। एम्प्टी स्टोमक चाय आप पी सकते हैं। एम्प्टी स्टोमक जब आप चाय पीते हैं, एक तो आपका रात का कफ वगैरह गल में और टीथ में बहुत कुछ रह जाता है, पेस्ट करने के बावजूद भी वो चाय सब चीज़ को एक बॉयल वाटर होता है साफ करके इंटेस्टाइन में ले जाती है, और कॉलन के जरिए वो सारा कुछ आप निकाल देते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्थ को ठीक करने में चाहे मदद में आप चीनी बॉयल करते हैं तो उसका फर्मेंटेशन हो जाता है, अल्कोहल को बन जाती है, इससे तेजाब बनता है, गैस बनती है और कॉन्स्टिपेशन भी करती है। अगर वैसे चीनी डालेंगे तो आपको पेट को साफ करेगी चाय, अगर चीनी को उसमें बॉयल करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन करेगी, उसका तस्वीर चेंज हो जाता है। सर लेमन ग्रास का जो ऑयल होता है, हाँ। तो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं Yes. तो उसको अगर वाटर में बॉईल करके उसकी टी बना के पीना चाहिए? पी सकते हैं। बॉयल जो है वो रिकमेंडेबल है, दैट इज ईटेबल। आप खा सकते हैं, उसका मसाज कर सकते हैं, आंखों में लगा सकते हैं, हेड मसाज कर सकते हैं, जॉइंट मसाज कर सकते हैं। उसको आप 1.5 ग्राम तक गर्म पानी में डालकर उसका चाय में पी सकते हैं। पर पीना मेरा ख्याल है एम्प्टी स्टमक ही चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें जिसको आपको ठीक लगता है, किसी को माबादी किसी को स्वादी जरूरी नहीं होता। हम बहुत सी दवाई रिकमेंड करते हैं, जैसे हम किसी को कहते हैं आप थोड़ा लहसुन और ये ग्लो और 3-4 चीज़ें जो हम देते हैं कि रगड़ के ले लो, और किसी आदमी को वो पेट में खाली एम्प्टी स्टोमक क्रैम्प्स डाल देता है, और लहसुन जब किसी को क्रैम्प्स एम्प्टी स्टोमक डालता है, लोग ज़्यादा लहसुन को एम्प्टी स्टोमक के लिए रिकमेंड करते हैं, और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, और 90% केस में डेथ हो जाती है। इसलिए अच्छा होता है कि कुछ चीज़ें जो नुकसान करती है, चाहे 1 लाख आदमी में से एक को करे, उसको अवॉइड करें आप उस ढंग को। हो सकता है उस लाख वाले आदमी से आप ही हो, इसलिए वो चीज़ों को कोई ज़रूरी नहीं होता उस पर प्रेशर डालने की इसको एम्प्टी स्टोमक लेना है। आप उसको ईजीली आप एक पहले बिस्कुट खा लें, फिर ले लें, या थोड़ा रस खा लें, या 2 चपाती की बुर्की खा लें, या कुछ चीज़ और खा लें। जैसे मतलब चाय ले सकते हैं एम्प्टी स्टोमक, नहीं चाय एम्प्टी स्टोमक ले सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो एम्प्टी स्टोमक नहीं खा सकते, जैसे लहसुन है, उसको कोशिश करना चाहिए एम्प्टी स्टोमक ना खाने का। उसको पेट भर के नहीं खाना चाहिए, कुछ छोटी मोटी चीज़ पहले ले लें, चाहे 1 बिस्कुट ही खा लें, या थोड़ा सा स्लाइस खा लें, थोड़ा सा कोई ब्रेड खा लें, फिर लहसुन को लें। क्योंकि लहसुन जब क्रैम्प्स डालता है उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ में जाता है पेशेंट को। हम लोग जब एक बार मैंने रूटीन में मैं दे रहा था ग्लो के साथ गार्लिक को, और कोई नहीं था, और वो मेरे ख्याल में मैं कम से कम 12-15 हज़ार पेशेंट को वो दिया, और सडनली एक पेशेंट ऐसा आया उसको क्रैम्प्स पड़ गया। वो मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से हम उसको बचा सकते। वो किताब में एंट्री या 25,000 लोगों को देकर हमने तो कर लिया, 100 लोगों का हम एनालिसिस करके उसका PhD करते हैं। अब मुझे 25,000 के बाद एक क्रैम्प्स पै गया तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? वो तो एक तजर्बे में से आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, एक्सपीरियंस से आएगा। तो एक्सपीरियंस जो है वो
हमारे जो सिस्टम में, हमारे खान पकवान में, हमारी हेल्थ में, हमारी दवाइयों में एक्सपीरियंस हम निकाल रहे हैं या किताब ला रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है समाज। ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक, जैसे हमारे पहले भी मैं बात हमेशा करता हूँ कि ये माता बैठी है, अगर किसी को पूछेंगे इसकी उम्र कितनी है, वो कहेंगे 80 साल है। उनको ये नहीं पता ये तो करोड़ों सालों की है। दादे परदादे लकड़ दादों का जो दादों का एक्सपीरियंस वो गेन करती आ रही है, उसको एक किताब दिखाकर खत्म कर देंगे। मुश्किल हमारी समाज की ये है कि इसकी दादी ने क्या किया, नानी ने क्या किया, नानी की नानी ने क्या किया, मामी की मामी, वो एक दूसरी को इन्फॉर्मेशन देती आ रही है ना, पीढ़ी दर ये इन्फॉर्मेशन ले रही है। ये करोड़ों साल की एजुकेशन हम 1 सेकंड में खत्म कर रहे हैं, उसको हम डॉक्टरी विज्ञान बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है समाज की, सबसे बड़ी, और इसीलिए समाज जो है घातक एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस रहा है। जिन लोगों को हम एजुकेटेड कह रहे हैं वो दरअसल वो बिल्कुल वो एजुकेटेड ही है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो उनके पास विजडम नहीं है कोई। इन लोगों को जिनके पास विजडम है इनको हम अनपढ़ कह रहे हैं। दरअसल इंफॉर्मेशन ने ये जो विजडम वाले लोग थे, उनसे लेना था, अपनी इंफॉर्मेशन से उनको रिकॉर्ड करना था। वो क्या करते हैं, पढ़कर अपनी इंफॉर्मेशन उन पे थोप रहे हैं और उनको इतनी इंफॉर्मेशन से थोप देते हैं कि उनको मिट्टी में दबा देते हैं, उनको ग्रो ही नहीं करने देते, अनएजुकेटेड कहकर निकाल रहे हैं उनको। समाज की बीमारी ये है और कुछ नहीं है। जब हम रात को सोते हैं ना जी, सोने के बाद हमारा शरीर थोड़ा स्लो हो जाता है, सुबह फिर हमने मोशन में आना होता है। चाय पी लो, चाय नहीं तो कोसा पानी पी लो। उनमें देखो सुबह उठकर मैं 1 लीटर के करीब चाय पीता हूँ, पूरा 1 लीटर। मेरा जो मग है वो 300 साढ़े 300 ग्राम का 3 पीता हूँ, मगर उसमें मीठा नहीं डालता, दूध नहीं डालता, सिर्फ पत्ती। एक टी बैग होता है वो बस उतना डालकर सारे 1 लीटर पीता हूँ। तो सारा पेट पूट साफ हो जाता है, गल साफ हो जाता है, इंटेस्टाइन साफ हो जाती है। बीमारी तो लोगों को सदा रहती है, मगर एहतियात करने से वो कम अफेक्ट करती है शरीर पे। देखा निर्णय का पानी तला पियो। ओ देखिए बात ऐसा होता है, निर्णय काल ये पानी या लिक्विड पीने का कंसेप्ट चाय भी उनमें से है। उसका मतलब ये होता है कि रात को जब हम सोते हैं, सोने के बाद हमारा खाना सब पखाने में बदल जाता है सुबह तक। तो जब वो पानी और चाय वगैरह हम पीते हैं, वो उसको जल्दी हमारी जो इंटेस्टाइन है नीचे तक ले आती है। कोई जो कुछ उसमें बचा खुचा सामान होता है उसको नीचे तक लाने से वो सारा इंटेस्टाइन क्लियर हो जाती है। गैस वगैरह अगर बनती है तो कम बनती है। पेट अगर साफ नहीं होता तो ज़्यादा साफ हो जाता है, ठीक नहीं। उसका ये फायदा होता है लिक्विड पीने, क्योंकि लिक्विड ने सीधा आ जाना होता है नीचे। अगर हम ठोस चीज़ डालेंगे वो इंटेस्टाइन को बहुत काम करना पड़ता है, बहुत स्लोली वो नीचे अगर पखाने के रूप में बनता है, ठीक नहीं। अगर हम लिक्विड लेते हैं वो सीधा ही आ जाता है, वो फिर एकदम लार्ज इंटेस्टाइन को प्रेशर देता है, पेट जल्दी साफ होता है। ये लिविंग लाइफ है। हनी में उसी पे बात आऊँ, जो शहद है ना, शहद को जब हम 50 डिग्री के ऊपर गर्म करते हैं तो शहद मर जाता है, उसको डेड बॉडी कहते हैं। शहद में एक छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, वो शहद में वो ऑक्सीजन रहता है उसमें पूरी उम्र। शहद चाहे 100 साल रहे, उसमें ऑक्सीजन रहता है। शहद जो है, हनी जो है, दैट इज लिविंग लाइफ। शहद जितना पुराना हो जाएगा उतना गुनाकारी होता रहेगा। 5 साल का शहद, 10 साल का शहद, 20 साल का शहद, 100 साल के शहद को डायमंड हनी बोलते हैं, सबसे कीमती होता है। अगर 100 साल का शहद किसी के पास हो, आज की मार्केट में उसकी कीमत 50,000 रुपये होगी एक बोतल, इतना कीमती शहद है। शहद को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या होता है, वो जो क्रिस्टल बने होते हैं जिनमें ऑक्सीजन रहता है वो खत्म हो जाते हैं। तो खत्म होने के बाद उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह खत्म हो गया जब, तो डेड बॉडी बन गई। उनको फिल्टर करने में सुंदर लगता है, गोल्डन लगता है, जैसे ये डाबर शाबर बेचते हैं वैसा बन जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि किसानों का शहद आप सीधे रूप में लाइए, चाहे लोग कहें डुप्लीकेट है, ट्रिप्लीकेट है, सब मार्केट की बात है। वो जीता शहद है, उसी को खाएं, मार्केट का शहद अवॉइड करें। ऐसे ही जैसे आप खाने की बात करते हैं, फ्रिज के खाने की बात करते हैं, खाना जब हम कुक करते हैं, कुक करने के बाद खाना एक नेचर में एक अपने खास टेम्परेचर पे आ जाता है।
वो जितना हम नेचुरल टेम्परेचर है उसमें वही खाने का टेम्परेचर होता है। वो जब शरीर में जाता है शरीर को डिस्टर्ब नहीं करता, नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करता। जब उसको हम फ्रिज में रखते हैं, बार बार फ्रिज में रखते हैं, गर्म करते हैं, रखते हैं, गर्म करते हैं, तो खाना भी मर जाता है। तो फिर वो मरा हुआ खाना जब जाता है बॉडी को, वो एक तो बॉडी में जाकर वो गैस बहुत बनाता है, एक हजम नहीं होता, फिर कब्जी करता है। जो गैस बनती है पेट में और कब्जी बंद होती है, सबसे गैस बनती है, उससे एसिड भी बन जाता है। वो हमारा शरीर में ऑक्सीजन की मकदार को कम करता है। शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाती है। जब शरीर में ऑक्सीजन का बहाव कम हो गया तो ब्लड में कम हो जाएगा, ब्लड इम्प्योर हो जाता है। फिर वो घुटनों में जो इम्प्योर ब्लड जब जाता है तो वो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होती, प्रॉपर उसको वो स्ट्रेंथ नहीं मिलती, प्रॉपर फीडिंग नहीं होती घुटनों की, उससे फिर दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए फ्रेश खाना खाना चाहिए। दालचीनी दरअसल गर्म नहीं होती, ठंडी भी नहीं होती। दालचीनी में एक बहुत ही बढ़िया बात यह है कि दालचीनी जो हमारा लीवर है और गॉल ब्लैडर है, इसके एंजाइम जो होते हैं, जो रिलीज होते हैं, एक तो उनको ये नॉर्मल रूप में रखती है, दूसरा पेनक्रियास से सही काम कराती है, तीसरा ब्लड को प्योरीफाई करती है। तो कितनी मात्रा में ले सकते हैं? दालचीनी हम आधा से 1 ग्राम तक एक आदमी ले सकता है। में आप बनाते हैं, डालते हैं तो बहुत ही कमाल की बात है। अगर आप दालचीनी देखिए, बीमारी तो आदमी को ये नहीं कि दालचीनी से ठीक हो जाएगी, मगर अगर आपको 20 किस्म के लगते हैं, आपको मेरे मन में लगता है कि मेरे को 20 किस्म की प्रॉब्लम है, अगर दालचीनी को हम घरों में प्रयोग करते हैं हमेशा, तो आपको ये जरूर लगेगा कि 50 ग्राम जो प्रॉब्लम है हमें खत्म हो गई 50%। इतनी बढ़िया दालचीनी, लहसुन, अदरक, जीरा, कलौंजी, हल्दी, लाल मिर्च, ये कभी ना भूलिए डालना, कभी ना भूलिए। जीरा गर्म बोलते हैं? जीरा गर्म नहीं होता, जीरा तो ठंडा होता है। और जीरा अगर कभी आपको पेशाब रुक जाए, जीरा बॉयल के दो तो एकदम पेशाब आ जाएगा। आपको गैस मार रही हो, सौंफ की जगह जीरा खाइए, ज्यादा गुना करिए। हम बाद में सौंफ खाते हैं ना खाने के, आप कभी जीरा खाएं, थोड़ी सी इसमें मिश्री डालें और जीरा चबाएं, आप कहेंगे सौंफ कौन किसने कहा खाने को, बहुत बढ़िया होता है। कलौंजी तो डॉक्टर साहब कैसी पड़ती है मसाले? कलौंजी मसाले में सबसे बढ़िया चीज़ों में गिनी जाती है। कलौंजी के बारे में इसमें अरब में कलौंजी पे बहुत काम हुआ है। इब्न सिना बहुत बड़े एक डॉक्टर हुए हैं, उन्होंने हज़रत मोहम्मद साहब ने कलौंजी पे बहुत बड़ा काम किया है। वो कलौंजी के बारे च ये लिखते ने कि रब दे घरों बंदे दे स्वास पूरे हो जान अलग गल है, पर ना कलौंजी खाने वाला बंदा मरदा नहीं। ईजिंग इफेक्ट खत्म कर दी है। एक दूजा कलौंजी जिहड़ी हैगी है शरीर की एनर्जी नूं शरीर के अंदर पूरा समूथ करके लगती है, डिस्टर्ब नहीं करती एकदम। कलौंजी बहुत चंगी चीज़ है, खानी चाहिए। साबती पा ले के पीस के पावे, जिवें जीरा पाउणे आपां सब्जी च, वो नाल ही कलौंजी पाती साबती। मतलब तड़के विच हाँ, तड़के ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। आम ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਕਲੌਂਜੀ? नहीं आम सिर्फ ਆਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਦੇ ਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। आम के चार ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਦਾਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣੇ ਆ ਚਾਰ। ਨਹੀਂ ਕਲੌਂਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲੌਂਜੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਔਰ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੌਂਜੀ ਬਿਨਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਾਬਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਭ। ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੋਈ? ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ, ਆਰਥਰਾਈਟਸ, ਰਿਊਮੇਟਾਇਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਠੀਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਘਟਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਬ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਾਏ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਈ ਲਾਲ ਮਿਰਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਜਦੋਂ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੇ ਚਿਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੇ ਕੁਰਕਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਲਡੋਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੈਸੀ ਫੁੱਲੀਜ਼ ਫਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਰਟ, ਸਪਾਈਸੀ ਫੁੱਲੀਜ਼ ਫਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਰਟ। ਵੀ ਹਾਰਟ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਫੁੱਲੀ ਖਾਓ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਖਾਓ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਆਪਦੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਲਏ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਉਲਝਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਸਕੋਗੇ, ਆਪਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇੰਨਾ ਉਲਝਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੀਹ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ, ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ 1 man died ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਾਈ। ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਰੇਕ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਸਮਾਨ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।